ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم۔ انسٹیٹیوٹ دی مون عرب آپ کی زندگی کے شاندار تجربات میں سے ایک تجربہ ہوگا۔ یہ ادارہ 1970 کی دہائی میں 18 عرب ملکوں نے فرینچ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر پیرس میں قائم کیا۔ سینٹ برنارڈ ایونیو پر 27,000 میٹر زمین خریدی گئی، دنیا کا بہترین اسلامی سینٹر بنانے کا اعلان کیا گیا۔ ڈیزائنر کا مقابلہ ہوا، یہ مقابلہ فرینچ آرکیٹیکٹ جین نویل نے جیتا۔ عمارت پر 23 کروڑ یورو خرچ ہوئے، جو پاکستانی 33 ارب روپے کے قریب بنتے ہیں۔ 1,82,000 مربع فٹ پر 12 منزلہ عمارت بنی، اور یہ عمارت دنیا بھر کے مذہبی اسکالر کا قبلہ بن گئی۔ فرینچ حکومت نے دنیا بھر سے اسلامی کلچر، عرب معاشرت اور بین الاقوامی مذاہب پر لاکھوں کتابیں اکٹھی کی، اور یہ کتابیں شیلفوں میں سجا دیں۔ عمارت میں کانفرنس ہال، ریسٹورنٹ اور بک ٹاور بن گیا۔ آپ سیڑھیاں چڑھتے جائیں، آپ دائیں بائیں ہزاروں کتابوں کے بک شیلف دیکھتے جائیں، اور یہ 12ویں منزل تک پہنچ جائیں۔ آپ دنیا کی کسی اسلامی کتاب کا نام لیں، لائبریرین وہ کتابیں نکال کر آپ کے ہاتھ میں دے دے گا۔ عمارت کی چھت پر ریسٹورنٹ اور کافی شاپس ہیں۔ آپ بے شک کتاب لے کر چھت پر بیٹھ جائیں، آپ پیرس شہر کا نظارہ کریں، دریائے سین دیکھیں، نوٹر ڈیم کا چرچ دیکھیں، یا پھر افق سے لے کر افق تک پھیلے شہر کا نظارہ کریں۔ کھانا کھائیں، کافی پئیں اور دھوپ میں بیٹھ کر کتاب پڑھتے رہیں۔ پوری عمارت آپ کی یکسوئی میں شریک ہو جائے گی۔ آپ جتنی مرتبہ اس عمارت میں داخل ہوں گے، اتنی مرتبہ علم کے نئے زاویوں سے متعارف ہوں گے۔ اس ادارے میں ہر سال لاکھوں اسکالرز آتے ہیں، ان میں غیر مسلم بھی شامل ہوتے ہیں۔ آپ جب بھی وہاں جائیں گے، آپ کو وہاں درجنوں یہودی اور عیسائی اسلام پر تحقیق کرتے ملتے ہیں۔ یہ لوگ بعد ازاں اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں سینکڑوں لائبریریاں اور اسلامی سینٹر دیکھے ہوں گے، لیکن دنیا میں انسٹیٹیوٹ دی مون عرب کا کوئی جوڑ نہیں۔ آپ کو اگر اسلامی ثقافت، اسلامی تاریخ سے دلچسپی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دے رکھے ہیں، تو آپ زندگی میں کم از کم ایک بار یہ انسٹیٹیوٹ ضرور دیکھیں۔ علم کا یہ دریا آپ کی ظاہری اور باطنی تمام آنکھیں کھول دے گا۔ پیرس کے قبرستان میں پہلی رات گزارنے والا امیر ترین پاکستانی، جو آج فرانس میں اربوں روپے کی کمپنی کا مالک ہے، اس پاکستانی کے بارے میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ پیرس کو محبت کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ الیکٹرک کاریں فرانس میں استعمال کی جاتی ہیں۔ فرانس میں سور کا نام نپولین رکھنے پر پابندی ہے۔ فرانس میں ایک کافی شاپ پر آرڈر دینے سے پہلے بونجور کہیں اور سب سے سستی کافی کا لطف اٹھائیں۔ ویورز، آج جدید فرانس کی سیر کروانے سے پہلے نئے آنے والوں سے یوٹیوب پر اسپائڈر بل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جمہوریہ فرانس مغربی یورپ میں واقع ملک ہے۔ فرانس کے ہمسایہ ممالک میں بیلجیم، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، مناکو، انڈورا، اسپین اور نیدرلینڈ ہیں۔ یورپ کے باہر فرانس کی سرحدیں برازیل، سورینام سے ملتی ہیں۔ فرانس کے چند علاقے شمالی اور جنوبی امریکہ، بحر الکاہل اور بحر ہند میں بھی واقع ہیں۔ فرانس ایک متحدہ نیم صدارتی جمہوری ریاست ہے۔ فرانس ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت ہے۔ فرانس یورپی یونین کے بانی ارکان میں سے ہے اور رقبے کے لحاظ سے اس کا سب سے بڑا رکن ہے۔ فرانس نیٹو کے بانی ارکان میں سے بھی ہے۔ فرانس اقوام متحدہ کے بانی ارکان میں سے بھی ہے اور سلامتی کونسل کا مستقل رکن بھی۔ فرانس دنیا کی 7 ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ فرانس کا دارالحکومت پیرس ہے۔ دفتری زبان فرانسیسی کتلانی ہے۔ کل رقبہ 5,51,500 مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی 6 کروڑ 70 لاکھ کے قریب ہے۔ فرانس کا جی ڈی پی 2.5 خرب ڈالر ہے۔ کرنسی یورو ہے۔ کالنگ کوڈ +33 ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین .fr ہے۔ دنیا بھر کے شہروں کی سڑکیں سائن بورڈز کے ساتھ بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک سائن سٹاپ کا بھی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، پیرس شہر میں صرف ایک سٹاپ کا اشارہ ہے۔ جب آپ بچے کے والدین بنتے ہیں تو یہ آپ کی قدرتی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ اس کی دیکھ بھال کریں۔ آپ کو اس کے لیے انعامات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فرانس میں جو والدین کامیابی سے بچوں کی صحیح پرورش کرتے ہیں، انہیں حکومت کی طرف سے اس خاندان کو میڈل سے نوازا جاتا ہے۔ جب کوئی بادشاہ اقتدار حاصل کرتا ہے، توقع کی جاتی ہے کہ وہ بہت طویل عرصے تک خدمت کرے گا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں فرانس کے ایک بادشاہ کا اقتدار صرف 20 منٹ رہا تھا۔ فرانس کے ایک صدر کا شمار دنیا کے ان خوش قسمت حکمرانوں میں ہوتا ہے جسے 32 مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ پھر بھی بچ گیا۔ فرانس میں تمام سڑکوں کا نقطہ آغاز پوائنٹ 0 سے ہوتا ہے، اور یہ ایک کانسی کے ستارے کی طرح کا نشان ہے
जो पेरिस में नोट्री डैम के मरकजी दरवाजे के करीब है। फ्रांस में अरब और अफ्रीका के रहने वाले 5 लाख से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सियाह फ्रांस का विजिट करते हैं। 2017 में 89 मिलियन गैर मुल्की सियाहों ने फ्रांस का विजिट किया। जर्मनी के बाद फ्रांस यूरोप का दूसरा ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, जिसकी 85% आबादी शहरों में रहती है। गाड़ियों की नंबर प्लेट दुनिया में सबसे पहले फ्रांस में मुतारफ कराई गई। फ्रांस में 12 टाइम जोन हैं। ये दुनिया के किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा नंबर है। 1814 से लेकर 1830 तक फ्रांस का झंडे का रंग सफेद होता था। अगर आप फ्रांसीसियों से फ्रेंच जुबान में बात करते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं बनिस्बत इंग्लिश के। 2012 तक फ्रांस में औरतों के लिए ट्राउजर पहनना गैर कानूनी था। फ्रांस से ज्यादा फ्रेंच जुबान अफ्रीका में बोली जाती है, क्योंकि अफ्रीका के अक्सर ममालिक में फ्रांस का कब्जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त तक सोने वाले लोग भी फ्रांसीसी हैं, जिसका दुरानिया औसतन 8 घंटे 45 मिनट है। पेरिस में 1500 बाइक स्टेशन हैं, जहां से आप बाइक किराए पर हासिल कर सकते हैं। फ्रांस में सितंबर को नए साल का आगाज होता है, जिसे ला रेंट्री कहा जाता है, यानी बच्चों के स्कूल स्टार्ट होते हैं, टैक्स के बिल्स आते हैं। फ्रांसीसी हर वक्त जश्न के मूड में रहते हैं। पेरिस की 14% आबादी गैर मुल्कियों की है। फ्रांस की अमीर तरीन शख्सियत बर्न अर्नट और उसकी फैमिली है, जिसकी दौलत की मालियत 87.7 अरब डॉलर है, जो फ्रांस की फैशन इंडस्ट्री की किंग मानी जाती है। अगर आप ज्यादा अरसा फ्रांस में रहें तो आप अपनी सकाफत को भूल कर उनके रंग में रंगे जाएंगे। फ्रांसीसियों को घर का खाने से ज्यादा फास्ट फूड खाना पसंद है। फ्रेंच पनीर बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ 365 से जायद फ्लेवर में दस्तयाब है। फ्रेंच फ्राइज पूरी दुनिया में मशहूर है। फ्रांस में सबसे ज्यादा गोश्त घोड़े और खरगोश का खाया जाता है, जो आपको हर रेस्टोरेंट के मेन्यू में मिल जाएगा। वाइन हर खाने के साथ शामिल होती है। फ्रांसीसी हर साल तकरीबन 500 मिलियन गूंगे खा जाते हैं। फ्रांस में 2 घंटे के लिए खाने की ब्रेक की जाती है। सिर्फ पेरिस शहर में 5000 रेस्टोरेंट हैं। फ्रांस को परफ्यूम्स यानी खुशबुओं का मुल्क भी कहते हैं। फ्रांस में 28 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। फ्रेंच ओपन हर साल फ्रांस में खेली जाती है। जीन्स के लिबास की इब्तिदा भी फ्रांस से हुई। पेरिस का जिम हेंस पिछले 30 सालों से अजनबियों को हफ्ते की रात दावत खिलाता है। पेरिस के एक शख्स ने 70 साल के लिए अपार्टमेंट किराए पर लिया। उसके मरने के बाद अपार्टमेंट खोला गया तो उसमें 2.1 मिलियन यूरो की पेंटिंग बरामद हुई। फ्रांस यूरोप में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने वाला मुल्क है। फ्रांस के मशहूर खेल फुटबॉल, सॉकर, रग्बी, टेनिस, साइकिलिंग है। अब आते हैं अमीर तरीन पाकिस्तानी की कहानी की तरफ। आज वो फ्रांस की दूसरी बड़ी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार करने वाली कंपनी का सीईओ है, जिसके फ्रांस भर में 192 स्टोर हैं और इसका सालाना टर्न ओवर 35 करोड़ डॉलर से ज्यादा है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 41 अरब रुपए के करीब बनते हैं। अब इसका बिजनेस यूरोप के दूसरे ममालिक तक जा पहुंचा है। पेरिस, दुबई, मराकश में उसके बुलंद बाला होटल रेस्टोरेंट हैं और ईवान सदर में इसको मदऊ किया जाता है। फ्रांसीसी सदर उसे आगे बढ़कर मिलते हैं। सफीर की महफिल में डिनर सर्व हुआ तो उसे किचन के झूलते दरवाजे को देखकर याद आया 30 बरस पहले उसने इसी फ्रांसीसी किचन में बावर्ची के तौर पर काम किया था। यादें उसे धरती मां पाकिस्तान के शहर जेहलम ले आईं। वो 17 साल की उम्र में जिस लड़की को पसंद करता था, बरादरी की बाहमी दुश्मनी के बायस उससे शादी मुमकिन न थी। 1983 में उसके गांव का एक शख्स जर्मनी से अपने अजीजों से मिलने आया। वो उसे यूरोप की कहानियां सुनाने लगा। उसने कार्ड निकाल कर दिखाया कि मैं दिन रात किसी भी वक्त इसे इस्तेमाल करके मशीन से पैसे निकलवाता हूँ। उसे एटीएम कार्ड दिलचस्प लगा। उसने पूछा क्या वहाँ अपनी पसंद की शादी की जा सकती है। जवाब हाँ में मिला तो उसने जर्मनी जाने का तहिया कर लिया। इसका बाप फौजी अफसर था जो लीबिया की फौज में डिप्यूटेशन पर था। उसने अपने बेटे को एक बैंक ड्राफ्ट भेजा कि शहर में मकान की तामीर शुरू कराए। उसने बाप का खत अपनी माँ को पढ़कर सुनाया, मगर उसमें 80,000 रुपए भेजने वाली बात गोल कर दी। उसने बैंक से रकम निकलवाई जो $800 के मसावी थी। अब्दुर्रहमान से जर्मनी ले जाने का मामला तय किया और फिर एक रोज वो घर वालों को बताए बगैर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हवाई जहाज में सवार हुआ और इस्तांबुल जा उतरा। वहाँ छोटे से होटल में तारकीन वतन का हजूम था जो जर्मनी के वीजे के हसूल के लिए कोशां थे। अमजद अजीज के पास जर्मनी के टिकट के लिए रकम कम निकली, अलबत्ता पेरिस के 1 वे टिकट का हसूल मुमकिन था। चुनाचा वो जैली पासपोर्ट और वीजे के साथ पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर जा उतरा। इमिग्रेशन अफसर ने पासपोर्ट चेक किया तो गिलू से चिपकाया हुआ फोटो नीचे जा गिरा।
तब उसे एयरपोर्ट की हवालात में कई घंटे गुजारने पड़े। उसके डिपोर्टेशन पेपर तैयार हुए, सीनियर अफसर उससे साइन कराने आया तो कुछ देर उसके मासूम चेहरे की तरफ देखता रहा और फिर तरस खाकर पासपोर्ट उसके हवाले करते हुए फ्रांस में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। उसे याद है किस तरह पेरिस में उसके आखिरी 100 फ्रांक टैक्सी के सफ़र पर खर्च हो गए तो वो बेघर था। उसे पुलों के नीचे, पार्कों और कब्रिस्तानों में सोना पड़ा। पुलिस वालों से छुपते हुए वो शहर भर में पाकिस्तानी चेहरों को देखता कि कोई रात गुजारने को छत मिल जाए, छोटी मोटी जॉब मिल जाए। वो किचनों में रात गए तक काम करता, बसें और ट्रक चलाता। आखिरकार काम के साथ उसने पढ़ाई करने का फैसला किया। नाइट क्लासेस लेनी शुरू कर दी। एक सुपर मार्केट के बाहर नबाताती सब्जियों का स्टॉल लगा लिया। ये फैसला उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इससे उसकी किस्मत बदलने लगी। जिसने पेरिस में पहली रात कब्रिस्तान में गुजारी थी, अमजद अजीज अपनी कामयाबी को किस्मत से मंसूब करता है, जो उसके बकौल अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, या फिर वो अपने कारकुनों की सताइश करता है जिन्हें वो सर कहकर मुखातिब करता है। ये कहानी दुनिया के सब परदेसियों के लिए कामयाबी का पहला गुर है। फ्रांसीसी साले 9 की आमद पर खूब जी भरकर पैन केक खाते हैं। दुनिया की सबसे तवील जंग फ्रांस और बरतानिया के दरमियान हुई, जो 115 साल तक जारी रही। ये जंग 1338 को शुरू हुई और 1453 को ख़त्म हुई। फ्रांस के पास 2435 टन सोने के ज़खायर हैं, जो दुनिया में चौथे नंबर पर हैं। एफल टावर पूरी दुनिया में फ्रांस की पहचान है। पेरिस में दरियाए सीन के किनारे वाक़या है। इसका नाम उसको डिज़ाइन करने वाले गस्ताफ एफल पर रखा गया। इसकी बुलंदी 1063 फुट यानी 324 मीटर है। उसे 1899 में मुकम्मल किया गया। इसे अब तक 30 करोड़ लोग देख चुके हैं। इसका वजन 7300 टन है। दोस्तों, ये थी फ्रांस के मुतल्लक वीडियो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाएं और साथ लाइक पर क्लिक करें। मुझे दें इजाज़त। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।